So, good evening, students. In last lecture, we had discussed about polarity. Last lecture, we had discussed about hybridization, and we had discussed the many type of hybridization, and we also correlate hybridization with VSEPR. So, overall, now we can easily find hybridization of a molecule as well as geometry, shape, bond angle, etc. about a molecule. Right? A very important phenomena is also very important terminology, very important characteristics of molecules is also there, which is need to know. Today we are going to discuss on it, that is polarity. And due to polarity, a moment generated in a molecule which is called a dipole moment. So here we are on this topic. Before we proceed on polarity of bonds, let me discuss polarity, how polarity develop. Actually, we know very well in heteroatomic molecule, what will happen in heteroatomic molecule. Specifically, I am talking about diatomic molecule like HF. I am talking here diatomic molecule like H and F, right? We know the electronegativity of fluorine is higher than hydrogen. So obviously, fluorine can pull its lone pair, shared pair of electron toward itself. That's why fluorine is more electronegative. And negative charge generate on fluorine. Obviously, same charge, the fluorine attracts shared pair of electron. In that case, hydrogen से तो shared pair of electron दूर ही जा रहे हैं. So obviously, positive charge generate on H plus. This charge equal in magnitude but opposite in nature. ये अगर हम चार्ज कैसे फ्रैक्शनल चार्ज कहते हैं, मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा but nature इसका opposite होगा. So such type of plus and minus orientation on atoms in a molecule is called polarity in molecule. It is polarity in molecule as well as polarity in bond, we can also say. Right? And a molecule or any structure which consists two pole, one pole is there, another pole is there, is known as dipole. Magnet is also a dipole. This molecule is also a dipole, right? So दो molecules जिसमें दो end होते हैं, दो poles होते हैं, उन poles का magnitude तो same होता है लेकिन nature different होता है, तब उसे कह देते हैं dipole, right? So what is the meaning of polarity and what is the meaning of dipole? I think it is very much clear to you, right? Okay. So here we are, polarity developed as we had discussed, polarity developed due to electronegativity difference. In bond, किसी bond में जो polarity develop होती है वो electronegativity difference के कारण से ही होती है. और ऐसा molecule जो polar होता है, ऐसा bond जो polar होता है उसे हम dipole भी कह सकते हैं. दो poles हो जाते हैं तो उसे हम dipole भी कहते हैं. डायपोल मोमेंट जो होता है वो किसी भी डायपोल के लिए डिफाइंड किया गया एक टर्म है एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ डायपोल. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ डायपोल. किसी डायपोल में जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड और जो दो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट. अगर हमने कहा A एंड B इज अ मॉलिक्यूल, A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव, इन दैट केस डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज, फ्रैक्शनल जो भी चार्ज है इनके ऊपर दैट इज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस लेट इट इज R. सो Q इंटू R. जनरली इट इज रिटन, अगर हम जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसकी जगह पर E यूज करते हैं क्योंकि मिनिमम जो चार्ज पॉसिबल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है.
लेकिन एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली फ्रैक्शनल चार्ज जो कि मैंने डेल्टा रिप्रेजेंट किया था थोड़ी देर पहले, आप देख चुके होंगे, जैसा मैंने डेल्टा रिप्रेजेंट किया था वैसे ही डेल्टा यहां पर यूज होता है। तो दो डिफरेंट कंडीशन होते, थ्योरेटिकल इट इज ई एंड प्रैक्टिकली इट इज डेल्टा, क्योंकि एक्चुअली चार्ज पूरा ट्रांसफर तो होता नहीं है, तो फ्रैक्शनल चार्ज की तरह यूज होता है। तो it is dipole moment. I think it is very much clear what is polarity in a molecule, polarity in a bond, what is dipole and what is dipole moment. I think it is very much clear. This dipole moment mu is equal to charge into distance of separation. So इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम मीटर या स्टेट कूलॉम सेंटीमीटर। चार्ज की जो ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट होती है वो स्टेट कूलॉम सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट की प्रैक्टिकल यूनिट है वो डेवाई होती है। 1 डेवाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलॉम मीटर, और अगर हम स्टेट कूलॉम या सीजीएस यूनिट में कहते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 18 स्टेट कूलॉम सेंटीमीटर इसकी यूनिट्स कही जाती है, राइट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड जो है वो नेगेटिव की तरफ होता है और एरो की जो टेल है या ये एंड जो जिस तरीके से मैंने बनाया है वो पॉजिटिव की तरफ रखा जाता है, और इस तरह से डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। या डाइपोल के डायरेक्शन को अगर मुझे इस मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि व्हाट इज दैट पोलैरिटी, राइट। पोलैरिटी कब होगी, जब डाइपोल नेचर होगा। डाइपोल नेचर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, अगर हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, राइट। और डाइपोल मोमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल का जीरो नहीं है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल पोलर है, और पोलर मॉलिक्यूल में को डाइपोल भी हम कह सकते हैं, राइट। हियर वी आर, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम देखें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ज्यादा इश्यू होता नहीं है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर हैं, यानी सेम एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता ही नहीं है, इसलिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमेशा कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। लेकिन अगर डायटोमिक में हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही, और इसीलिए वो हमेशा नॉन पोलर, हमेशा पोलर ही होते हैं। पोलैरिटी की वैल्यू काफी कम हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा पोलर ही होते हैं अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब हम इसको डिफाइन करते हैं, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है या नहीं है, बॉन्ड में पोलैरिटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलर पोलैरिटी है या नहीं है, उसको डिफाइन करने का काम जो है वो वेक्टर सम के थ्रू किया जाता है। जितने भी डायपोल हैं उनके वेक्टर असाइन किए जाते हैं, उनके साइन असाइन किए जाते हैं, और उसके बीच उनमें एंगल्स लेकर हम रिजल्टेंट निकाल के फाइंड करते हैं कि मॉलिक्यूल का डायपोल नेचर जीरो है या नहीं है। मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूं। जैसे मेरे पास BeCl2 एक मॉलिक्यूल है। अब BeCl2 की अगर मैं बात करता हूं तो BeCl2 मॉलिक्यूल में BeCl, Be के साथ Cl के दो बॉन्ड हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बॉन्ड में यहां पर प्लस होगा और यहां पर माइनस होगा, और इसके रिस्पेक्ट में यहां पर प्लस होगा और यहां माइनस होगा, यानी दो बॉन्ड जो यहां पर हैं दोनों ही डायपोल हैं, यानी बॉन्ड में पोलैरिटी है। लेकिन तो यहां पर आप समझ पाएंगे कि बॉन्ड में पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बॉन्ड में पोलैरिटी है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, इसके लिए आपको वेक्टर सम देखना होगा। तो इसके लिए डायपोल मोमेंट के वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और इसके लिए डायपोल मोमेंट के वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, और अगर हम इस फॉर्मूले में जो आपके पास फॉर्मूला है, इसके लिए हमने ले लिया μ1, इसके लिए हमने ले लिया μ2, और उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं तो यहां पर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर
प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो इस कंडीशंस में शायद मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। μ1 μ2 नहीं है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं इसे करेक्ट करता हूँ। तो ये μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर है ना, μ1 स्क्वायर μ2, इसी तरह से μ2 के लिए आ जाएगा μ2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा है ना, μ2, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसका हम यूज करते हैं, और इस फॉर्मूले को हम वेक्टर सम के लिए यूज भी करते हैं, राइट। तो मैं उसे करेक्ट कर देता हूं, जो मैंने गलत लिखा था इसको मैं हटा देता हूं, और इसकी जगह पर मैं नया जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया है उसको मैं लिख देता हूं, राइट। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी इसको बनाने में, राइट। तो ये μ1 स्क्वायर, तो यहाँ -1 हो जाएगा। μ1 μ2 दोनों बराबर ही हैं, तो वैल्यू जो है वो, क्योंकि वो एक ही तरीके के बॉन्ड है, तो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू म्यू। सो म्यू की वैल्यू हर जगह रख दीजिए, यू विल गेट म्यू रिजल्टेंट इज 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। तो वेक्टर सम का मीनिंग जो मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वेक्टर सम के पॉइंट ऑफ व्यू से। BF3 मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। BF3 मॉलिक्यूल में देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, तीनों बॉन्ड, इस तीनों में देखें तो ये प्लस और ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, राइट। और अगर हम इनके इसके डायरेक्शंस को देखें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, दूसरा डायरेक्शन ये होगा, और तीसरा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, राइट। अगर हम फॉर्मूले का उसी का यूज करें इसे μ1 μ2 लेके, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यहां हमें इसका रिजल्टेंट मिलेगा, और रिजल्टेंट और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे 180 डिग्री। तो ओवरऑल जो है वो हमें म्यू रिजल्टेंट जो इस मॉलिक्यूल के लिए भी देखने को मिलेगा वो 0 देखने को मिलेगा। सो वेक्टर सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस अगेन, राइट। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वेक्टर सम से ही हम बता पाते हैं कि एक्चुअली क्या कंडीशन होगी। जैसे मेरे एक एग्जांपल है, मैं आपको वो भी शेयर करता हूं। NH3, अगर मैं NH3 हाइड्रोजन, हम NH3 का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से जानते हैं, 3 हाइड्रोजन यहां पर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। मैं थोड़ा शायद आपको एक पार्ट मिस हो रहा हो तो इसमें यहां लिख देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, और एक लोन पेयर जो है यहां पर। इसी तरह से मैं NF3 को भी लिख रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक गैसिंग में आपसे पूछूं कि दोनों में से डायपोल मोमेंट किसके लिए ज्यादा होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट किसके लिए ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट शायद आपका आंसर होगा कि NF3 के लिए होगा, शायद NH3 के लिए होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर मैं उस पॉइंट पर आता हूं तो चलिए चेक करते हैं। तो जो लोन पेयर है, लोन पेयर को सबसे ज्यादा नेगेटिव माना जाता है और इसीलिए ये माइनस होता है। तो यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है दोनों ही केसेस में, यहां माइनस होता है तो यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। फिर इसका देखें तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और इसका देखें तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। बस तीनों का ऊपर तरफ होगा, और इन तीनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो उसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और ये भी ऊपर की तरफ ही है। यानी ये और इन तीनों का रिजल्टेंट जो है उन दोनों ही म्यू आर जो इन तीनों का है और म्यू जो इन दोनों का, ये एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी मैक्सिमम कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेकेंड, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इस कंडीशंस में इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ होता है, इसके कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है और इसका डायरेक्शन अपवर्ड। तो इन तीनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है और इसका ये जो है अपवर्ड है, तो अगेन 180 डिग्री एंगल बन रहा है। वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि रिजल्टेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। सो ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट इन केस ऑफ NH3 इज हायर देन म्यू ऑफ NF3। जबकि अगर हम एक इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करें तो NF में पोलैरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH। सो दिस इज द पॉइंट। तो वेक्टर सम का यूज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपैरेटिव स्टडी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कंपैरेटिव अगर हमें बताना है कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू कम है या ज़्यादा है, उसके लिए हमें वेक्टर सम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, कुछ तरीके जिससे कि हम बता सकें कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी या नहीं होगी, मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, राइट। इसके लिए दो कंडीशंस का हमें यूज करना पड़ता है, जो हमारे लिए, जिससे हमारे लिए कंडीशन रिलेटिवली ज्यादा आसान हो जाती है, ज्यादा आसानी से हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं। कंडीशन 1 जो हमें फॉलो करनी है, क्वालिटेटिव का मतलब है हम ये पता कर पाए कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। सबसे इंपॉर्टेंट ये पता करना जो है वो उसकी कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं, कम है या ज्यादा है बात की बात, वो वेक्टर सम से ही आएगा, लेकिन पोलर है या नहीं नॉन पोलर है वो इस मेथड से आ सकता है। कंडीशन 1 में हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूल में इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम, जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम जैसे BF3 में है तो 3 जो फ्लोरीन है वो सराउंडिंग एटम कहलाते हैं, और बोरॉन सेंट्रल एटम। तो जो सेंटर में होता है वो सेंट्रल एटम, और जो तीनों तरफ होते हैं या जो चारों तरफ होते हैं वो सराउंडिंग एटम्स। तो अगर सराउंडिंग एटम सेम है और लोन पेयर सेंट्रल एटम्स पर नहीं है, इस कंडीशन में मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा। आपको मॉलिक्यूल में ये देखना है कि सराउंडिंग एटम जैसे BF3 है, CH4 है, तो इनमें सराउंडिंग एटम सेम है। और दूसरी चीज जो आपको देखनी है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो नहीं है, तो CH4 BF3 या BCl2 इसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करते हैं, स्टेरिक नंबर और हाइब्रिड ऑर्बिटल की कंडीशंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट। तो ऐसी कंडीशन है मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा। लेकिन अगर कंडीशन 1 वायोलेट हो रही है तो मॉलिक्यूल ज्यादातर पोलर ही होता है। कुछ कंडीशंस में नॉन पोलर हो सकता है, इसलिए स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। मैं इस कंडीशन को डिवाइड कर देता हूं। इस कंडीशन में ए में सबसे पहले मैं लिख देता हूं इफ, लेकिन उसमें भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, लेकिन फिर भी यहां लिखा जा सकता है इफ सराउंडिंग एटम्स इज डिफरेंट। If surrounding atoms different, in that case molecule must be polar। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा ही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं, उससे रिलेटेड बहुत ही कॉम्पिटिशन्स में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मेरे पास CH4 है और CH3Cl है और CH2Cl2 है और CHCl3 है और CCl4 है, ये 4 मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं। इन चारों मॉलिक्यूल्स में कौन से पोलर होंगे और कौन से नॉन पोलर? बिकॉज हम जानते हैं सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमें जो फर्स्ट कंडीशन है, या कंडीशन इन द सेंस कि हमें यही देखना है सराउंडिंग एटम, तो CH4 में सराउंडिंग एटम सेम है और CCl4 में सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसीलिए ये दोनों नॉन पोलर होंगे। अब बचते हैं ये तीनों, तो CH3Cl, CH2Cl2 एंड CHCl3 जो होते हैं वो तीनों पोलर होते हैं। और जैसे जैसे Cl का नंबर बढ़ता है पोलैरिटी कम होते जाती है, यानी CH3Cl सबसे ज्यादा पोलर होता है, फिर CH2Cl2 आता है और सबसे कम पोलैरिटी CHCl3 की होती है। तो आपको शायद समझ में आया होगा, जैसे BF3 है, अगर BF2Cl होता है या BCl2 में BeCl और F होता है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। तो सराउंडिंग एटम्स का जो रूल है शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट है तो उस कंडीशंस में पोलैरिटी जो है वो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। बट इन केस ऑफ लोन पेयर, इफ लोन पेयर इज देयर, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो मॉलिक्यूल मोस्टली पोलर, लेकिन स्ट्रक्चर फिर भी देखना जरूरी है, मोस्टली पोलर, बट स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन इज नेसेसरी।
structural interpretation is necessary. तो आप कोई भी मॉलिक्यूल देखिए, जैसे NH3 को हमने देखा लोन पेयर होता है, H2O में देखा सेंट्रल एटम में लोन पेयर होता है, हर मॉलिक्यूल में आप लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे, राइट। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस रिगार्डिंग, राइट। जैसे H2O है, H2O में एक लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं तो ये पोलर हो गया। NH3 में लोन पेयर होता है तो ये पोलर हो गया, राइट। जो है ClF3 में दो दो लोन पेयर होते हैं, ये पोलर हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स जिसमें भी लोन पेयर होता है वो पोलर हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। XeF4, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो Xe के पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इस केस में अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर ज्योमेट्री होती है और 2 लोन पेयर ऊपर और नीचे होते हैं। तो इस कंडीशन में यू कैन सी कि ये डायपोल मोमेंट के, इनके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और ऐसी कंडीशन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, और ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। और लोन पेयर जो कि माइनस इधर होगा और यहाँ पर भी जो कि माइनस इधर होगा, ये भी एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। और देखिए दो दिस मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर, दिस इज अगेन म्यू रिजल्टेंट इज 0। तो इसमें म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन जरूरी है, थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज जो सेकंड केस है, मोस्ट ऑफ द केसेस है, बहुत ही कुछ ही एग्जांपल है। XeF2 भी इसी तरह का एक एग्जांपल है। अगर XeF2 का आप अरेंजमेंट देखें तो XeF2 लीनियर होता है, 3 लोन पेयर जबकि उसमें होते हैं, और 3 लोन पेयर ट्राइंगुलर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होते हैं, 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होते हैं। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में और इसका रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में, वो 0 हो जाते हैं। और फ्लोरीन 2 ऊपर और नीचे होते हैं, वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं डायपोल मोमेंट को। तो अगेन ये मॉलिक्यूल तो स्ट्रक्चर से भी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने कहा कि बार बार स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन जरूरी होता है, और इसका रिजल्टेंट भी 0 हो जाता है। तो कई बार लोन पेयर होने के बाद भी रिजल्टेंट होता है, लेकिन ऐसे कुछ ही एग्जांपल्स हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बिल्कुल, अगर आपने लोन पेयर फाइंड कर लिया है तो वो मॉलिक्यूल पोलर ही होगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा विल डिस्कस इन द क्लास, और अगर कोई इश्यू है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर टुडे।